Okay, so gravitation. Yesterday we completed 4 sum. Remaining जो बचे वो आज खत्म कर लेते हैं. Sum number 15. A stone thrown. A stone thrown vertically upward. के ऊपर फेंका. With the initial velocity 40 meter per second. 40 meter per second स्पीड से जा रहा है. So ball is moving upward with a velocity 40 meter per second. ठीक है, चलो जाने दो. Okay. Getting g is equal to 10 meter per second. Okay. Find the maximum height reached by the stone. G की value whenever we have to take 10 meter per second square. But whenever coming downside, okay, toward the earth, whenever it is moving ascent, ऊपर जाएगा. Ascent में माइनस लेना है और g जब डिसेंट लोगे तो प्लस लेना है. डिसेंट डिसेंट मींस नीचे आना है, ascent मींस ऊपर जाना. ठीक है. So maximum height at which the ball the stone reach, कितने हाइट तक जाएगा स्टोन, पहले फाइंड आउट करना है. Then what is the net displacement and total distance covered by the stone. स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे. सो इनिशियल दीवार, सो फॉर्मूला है हमारे पास. अच्छा, इनिशियल बॉल स्टोन को फेंका ऊपर गया, जाते 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 एक जगह पे जाके रुक गया. सो द फाइनल वेलोसिटी इज 0. फाइनल 0 मीटर पर सेकंड. सो वी हैव फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h लिखो या s लिखो. ओके, एक ही बात है. सो v दिस इज 0 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू है 40 का स्क्वायर is equal to 2 into whenever moving upward minus or s find out. So 0 का square no need to write minus, 40 का square 60, 100. This become 2 into minus 20 into s, minus 20 this side upon 20 minus 20. 0 0 1 जा 18. Yes. So the stone reach maximum 18 meter height. 18 मीटर पे गया स्टोन. 80 मीटर गया. अभी फिर नीचे भी आया ना नीचे. अभी 80 मीटर गया तो 80 मीटर ही नीचे आएगा ना, इधर से फेंका उधर ही आएगा ना फिर से. सो सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस 80 गया और 80 आया. सो टोटल डिस्टेंस कवर 160 मीटर. और बोला है टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टैंडिंग. अभी मैंने इधर से फेंका और फिर इधर ही आया. सो स्टार्टिंग पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वही एंडिंग पोजीशन है. स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन इज सेम. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0. यू कैन राइट 80 minus 80. ऊपर 80 गया फिर नीचे 80 आया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर. Means whenever the starting position and ending position is same, that time displacement is 0, but distance होगा but displacement 0 होता है. Okay, so चलो फटाफट लिखो. Sum number 16. Calculate the force of gravitation between Earth and the Sun. Given that mass of Earth 6 into 10 raised to 24. 16. Mass of Earth is equal to 6 into 10 raised to 24 kg. Okay. And mass of the Sun, mass of Sun is 2 into 10 raised to 30 kg. Average distance between two
The distance between them is 1.5 into 10 s to 11 meter. Means the radius between them are, we use this is for the distance is 1.5 into 10 raised to 11 meter. And the value of g, that is constant value is 6.7. ये last time हम लोग ने lesson में देखा था 6.7 into 10 raised to minus 11 and m square per kg square minus 2. So the value of g, that is the gravitational constant, ये value fix है 6.7 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. The distance between Earth and Sun, that is 1.5 into 10 raised to 11 meter. Mass of Sun is given and mass of Earth is given, and we have to find, हम लोगों को find out करना है the force of gravitation between Earth and Sun. Force of gravitation हम लोगों को ये दोनों का यहाँ पे find out करना है. Means we have to find F. So we have the formula gravitational, Newton's law of gravitation का हम लोग ने formula देखा था. F is equal to G. पता होगा तुम लोग को, हम लोग ने लिया था F. Then we taken G, capital M minus small m is equal to R square. ये formula था. M, capital M for the bigger mass, small m for the smaller. But अभी हमारे पास m है for the sun into m, that is for Earth, and R for the distance. Now value of G की वैल्यू देखो कितनी है 6.7 into 10 raised to minus 11 into mass of sun is 2 into 10 raised to 30 into mass of earth is 6 into 10 raised to 24 upon value of r कितना है भाई 1.5 into 10 raised to 11, इसका स्क्वायर करना है. अभी इसको आराम से समझो कैलकुलेशन को आगे. We have to use the rule of indices. तो पहले whatever tens पावर को एक साइड में डालो. पहले लो 6.7 into 2 into 6 into rule of indices, पावर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड होती है. -11 plus 30 plus 24. एक ही टेन लेना है. इसका स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. 15 into 15 225. तो 1.5 है तो इट इज 2.25 into यहाँ पे 11 है. ये मल्टीप्लिकेशन होता है बोलो 11 into 2 10 की पावर हो जाएगी 22. Now just multiply 6 to the 12. 6.7 into 12 into 10. 30 और 24 54. 54 में से 11 गया 43 upon 2.25 into 10 raised to 22. अब ये 10 raised to 22 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 22 इधर जाके माइनस हो जाता है. और तुम लोग इसको डिवाइड कर सकते हो अगर तुम्हें आता है तो. सो हम लोग इसको सिंपल वे से थोड़ा कर लेते हैं, जितना हो सके उतना मैं करता हूँ. 12 है और 2 to 5 है, 3 से डिवाइड होता है. 3 के टेबल में आता है 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 5 जा, ये हो गया 0.7. तो अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे 6.7 into ऊपर बचा है 4, नीचे बचा है 0.75. ओके into ये 20 to 10 raised to 22 ऊपर जाके माइनस होगा 10 raised to 43 minus 20. ओके सो चलो करो कैलकुलेशन. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 7. एक डेसिमल का एक 0 आया into 4 और नीचे के दोनों डेसिमल गए into 10. 43 में से 22 गया, 3 में से 2 गया, बचा 1 और बचा 21. फिर इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से. 5 से जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 5 1 जा 5 5 3 जा 5 4 134.
So 134 into 4 upon 50 into 10 raised to 20. Multiply करो 4 4 the 16, 4 3 the 12, and 1 13, 1 carry. 4 1 the 4 and 5 upon 15 into 10 raised to 20. Divide करो भाई 5 3 6 upon 15, 3 is 45, बचा 8, 5 is 75, 6 में से गया बचा 1 एक पॉइंट दिया 0 आया, 7 is 105, बचा 5, 3 is so these become 35.7 into 10 raised to 20. बट हमेशा फिजिक्स का रूल है एक के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, मींस 35 पॉइंट है ना, सो इट शुड बी 3.5, वो 3.5 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल प्लेस मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर ये इधर आएगा तो इधर 1 इंक्रीज होगा, सो दिस बिकम 3.57 into 10 raised to ये जो 21 था, दिस बिकम 22। देखो पॉइंट अगर एक वन प्लेस लेफ्ट हैंड में जाता है तो 10 की पावर 1 बढ़ती है, अगर वो राइट हैंड में जाएगा तो 10 की पावर 1 से कम हो जाएगी। सो द आंसर इज 3.57 into 10 raised to 22, और क्या आ गया, ये ग्रेविटेशन था द न्यूटन, सो तुम्हारा आ गया द ग्रेविटेशन पावर ऑफ सन इन बिटवीन सन एंड अर्थ इज 3.57 into 10 raised to 22 न्यूटन। Some sort. So, next part is a stone allowed to fall from the top of the tower of 100 meter high. 100 meter height पे टावर है, वहां से स्टोन को फेंक दिया नीचे, छोड़ दिया। At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 meter per second. दूसरे वही टाइम पे जैसे उसने ऊपर से छोड़ा वैसे नीचे से नहीं है कि दूसरा स्टोन फेंका ऊपर, और उसकी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन्स विल मीट, दोनों स्टोन एक दूसरे को कहां पे मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ओके, वी हैव टू फाइंड कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। व्हेन एंड वेयर बोथ द स्टोन विल बी मीट। सो पहले हम लोग देखते हैं डिसेंट ऑफ स्टोन, और दूसरा देखते हैं एसेंट ऑफ स्टोन। एसेंट मींस अपवर्ड एंड डिसेंट मींस डाउनवर्ड। सो डिसेंट फेंका तो पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, ये तो हम लोग को मालूम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला उसने, कभी मिला क्या मिला पता नहीं, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। सर हाइट 100 मीटर्स। क्या बोलते हैं सर हाइट दी गई है इसमें। हाइट का कुछ लेना देना नहीं फिलहाल। जो एसेंट है, स्टोन फेंका ऊपर, वो क्या फेंका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ओके, थ्रो बाय 25 मीटर पर सेकंड, बट इसका जी आएगा नेगेटिव बिकॉज़ ये ऊपर जा रहा है, -9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, एक ऊपर से नीचे गया, एक नीचे से ऊपर आया, दोनों एक जगह पे कहीं ना कहीं पे मिले, तो टोटल हाइट कितनी थी 100 मीटर, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला है एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट हियर वी हैव टू राइट dt स्क्वायर। सो s का s एज इट रखेंगे 0 into t प्लस हाफ, g है 9.8 and d we have to find, 0 into t is 0, इसको d1 is become 4.9 t square, so it is a 4.9 t square. This is s first. Now here we can take s dash means because displacement ही कर रहे हैं
यहाँ पे भी s लिया, तो यहाँ पे s नहीं ले सकते, तो we will take one dash, that is known as complement sets में हम लोग ने देखा था complement set होता है, तो वैसे ही complement. So this is ut plus half again gt square. u here 25, t पता नहीं है, half g हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे ना, एसेंट है माइनस 9.8, t स्क्वायर फाइंड आउट कर. This is 4.9, so this is 25t minus 4.9 t square. This is s dash, this is second. So total distance covered, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 100 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कौन कौन कवर करेगा, s and s dash is equal to 100. So s, that is a 4.9 t square plus this one is a 25t and minus 4.9 t square is equal to 100. देखो फर्स्ट स्टोन और सेकंड स्टोन, फर्स्ट स्टोन और सेकंड स्टोन मिलके 100 मीटर करते हैं, तो दोनों का ऐड किया, दोनों का डिस्टेंस, तो 4.9 प्लस माइनस कैंसिल, so you have 25t is equal to 100, t is equal to 100 divided by 25, 1 za 4 za, so t is equal to 4 seconds. So for एक आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, both stone meet after 4 seconds. 4 सेकंड के बाद मिलेंगे, लेकिन कहां पे मिलेंगे, तो s निकालना है, s is equal to 4.9 t square, तो 4.9 t की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, 4.9 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 का 144, 14 बाकी, 16 4 का 64, 8 है और ये 7, कितना आएगा 78. ओके, सो both stone meet 78.4 meter, meet at 78.4 meter, कहाँ पे, from descent, ascent नहीं, from descent. You have to find कि कितने टाइम के बाद मिला और कहाँ पे मिला. सो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिले ये भी पता चला और कितने टाइम के बाद मिले ये भी पता चला. Okay, so next question. A ball is thrown vertically and returned to the tower after 6 seconds. Okay, fine. बॉल को ऊपर फेंका और 6 seconds के बाद वो नीचे आया. The velocity with which it was thrown out, कौन से velocity से उसको ऊपर भेजा, यानी when starting velocity, initial velocity we have to find. Sum number 18. So क्या है यहाँ पे, time of ascent plus time of descent, दोनों मिला के कितना टाइम लगता है, बॉल को 6 सेकंड्स लगते हैं, बट हमेशा दोनों इक्वल ही होते हैं. सो अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू डाउनवर्ड जर्नी, दोनों मिला के उसको 3 सेकंड्स लगेंगे, ऊपर जाने को 3 सेकंड, नीचे आने को 3 सेकंड, टोटल मिला के लगेगा उसको 6 सेकंड्स. ठीक है, सो फर्स्ट अपवर्ड का देखते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना. सो फाइनल वेलोसिटी, नीचे से फेंका उसको, पहले फास्ट जाएगा, ऊपर जाके स्लो हो जाएगा, एक जगह जाके रुक जाएगा. सो एट पर्टिकुलर हाइट स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0 मीटर पर सेकंड, 0 ही होगी. इट मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया तो माइनस में आएगा 9.8, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, टुवर्ड द ग्रेविटी, प्लस
अगर ऊपर जा रहा है बॉडी तो g की वैल्यू माइनस, नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू प्लस। सो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at आता है, यू कैन राइट नाउ gt। gt क्यों लिखेंगे? बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर हॉरिजॉन्टल है तो 80 लिखेंगे। v is 0, u we have to find, g की वैल्यू है -9.8 एंड t कितना है? 3 है ना रे। सो 0 u plus minus minus create the 24, 2 carry 27 and 2 29, so 29.4 minus ये साइड है प्लस होएगा 29.4 is equal to u is equal to 29.4 मीटर पर सेकंड। सो फर्स्ट का आंसर तुम्हारा आ गया, इनिशियल वेलोसिटी इज 29.4 मीटर पर सेकंड। Second question asks the maximum height it reaches, कितने हाइट तक गया हो? तो हाइट तक गया फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी आई 29.4 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा 3 सेकंड्स, g की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकंड हुआ है। तो फाइंड आउट करो s ut plus half gt square as for the displacement. So this is 29.4 into 3 plus half, यहाँ पे आएगा -9.8 और t की वैल्यू 3 स्क्वायर। सो ये कैंसिल होगा, 1 जा 4.9, 29.4 into 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 4 3 12, 1 carry, 9 3 27, 1 carry था, 27 and 1 28, 2 carry, 2 3 6 and 2 8, 1 decimal place 88.2, minus plus minus आएगा, then 4.9 into 3 का स्क्वायर मींस 9 आता है। So 88.2 minus 9 9 the 81, 8 carry, 9 4 the 36 and 8 44, तो 88.2 minus 44.1 तो आएगा 44.1 मीटर। सो सेकंड का आ गया, it reaches up to 44.1 मीटर, 44.1 मीटर तक आया। अभी बचा थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्विस्ट करके दिया उन लोगों ने। थर्ड पार्ट में पूछा है इट्स पोजीशन अप आफ्टर 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स के बाद इसकी पोजीशन क्या है उन लोगों ने पूछा है। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे देखो, पहले 3 सेकंड्स में वो बॉल नीचे से ऊपर गया और फिर बाद में नीचे आया। सो 4 सेकंड में क्या होगा? तो सपोज बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे 3 सेकंड्स में आया ऊपर, कौन सा हाइट पे आया? 44.1 पे 3 सेकंड, और फिर वहां से फिर से 1 सेकंड में नीचे आएगा इधर। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो बॉल की पोजीशन ग्राउंड से कहां पे पता चलेगा। आई विल रिपीट अगेन, 3 सेकंड्स के बाद बॉल कहां पे होगा? व्हाटएवर स्टोन कहां पे? आफ्टर 3 सेकंड 44.1 पे, लेकिन हमें बताना है 4 सेकंड। सो 3 सेकंड में ऊपर गया और फिर वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, नीचे आएगा तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो आफ्टर 3 सेकंड्स में यहाँ पे आया, देन उसके बाद 1 सेकंड में नीचे आया। तो ये कहाँ पे है बॉल? ग्राउंड सरफेस पे। ग्राउंड सरफेस से कितने हाइट पे फाइंड आउट करना है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो निकालो और 44 में से माइनस करो। सो फॉर थर्ड, टाइम इज इक्वल टू 4 - 3 दैट इज 1 सेकंड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड आफ्टर 3 सेकंड्स।
3 सेकंड के बाद डाउनवर्ड जर्नी उसकी स्टार्ट होगी। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट अभी यहाँ पे फॉर थर्ड बॉल गया नीचे से ऊपर जाके रुक गया, इट स्टॉप। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी अभी टुवर्ड्स द ग्रेविटी नीचे आ रहा है तो ये प्लस आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है हमारे पास 1 है। ओके, इन द प्लेस ऑफ a वी हैव टू राइट g। लिखो फिर 0 into 1 plus half into 9.8 into 1 का स्क्वायर। This is the 4.9। 1 into 0 0, 4.9 into 1, so आया 4.9 मीटर। तो एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4.9 मीटर। सो पोजीशन of stone after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या है? ठीक है, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो पहले पोजीशन कितने हाइट पे है बॉल? 44.1 पे। इट्स इज ऑफ 44.1। इसमें से ट्रैवल कितना किया? 4.9। माइनस करो 11 में से 44.1 minus 4.9 बचा 2 9। It's of 3.2 meter from ground surface। हो गया।